And my friends, the stage is now set for the panel discussion. And as you are aware, that today we have with us the co-founder and CMO of boAt, Shri Aman Gupta ji. I'm sure everybody is, oh, the applaud itself is self-explanatory. Give a big round of applause, guys. I mean, why to shy off? So looking at the applaud and looking at the popularity, I think I think the first question has to come to you. So let me ask the first question of this panel discussion today to Amanji. The entrepreneurship is often linked with the risk-taking and innovation. What lessons young leaders, those who are sitting in the front, can learn from the startup ecosystem that can be applied to the governance and policy making? First of all, I would like to thank you guys to call me here. It's an honor. And I was listening to Sir, and he was saying there are a lot of he's won 8 times, right? It is I was asking him कि वो anti incumbency नहीं होती, so he says no, it's pro incumbency, right? Things have changed in India, sir. People like you, and when you were talking like a colonel. I was telling you, right? Normally there used to be politicians earlier, जिसको हम मतलब the politicians earlier, हम लोगों को ना डर लगता था politicians से बात करने में, frankly, right? It's so nice today that politicians have become so approachable. I just asked him कि sir, I would like to present to you. He says yes, let's connect, and he gave me his number. पहले ना लोगों को sir ये connection नहीं होता था, but so thank you for making politics come to a common man like us, sir. Thank you. Sorry, आपका question मैं भूल गया. So the question is, the entrepreneurship is often linked with risk-taking and innovation. Yes. So what lessons young leaders can learn from the startup ecosystem, and which can they connect to the governance and leadership? So startup ecosystem, was not there a few years back. When I started, you guys okay with Hindi also, right? We can talk in Hindi. So, 2016 में ये start हुआ था, right? हमारी company, and that was the time when Startup India was also starting, right? So, people, when I was starting, people were not looking at startups as something which they wanted to do. A lot of students, बहुत सारे students होते थे जो कहते थे कि हमें startup नहीं करना, right? अब आप देखोगे, if you go to any college, any school, there are a lot of people who want to start up. Why? The change has happened in our country that startups are now becoming a very valuable part of the country. If you ask me about how startups are helping, what startups are doing differently, we look at the consumers. हम वो करते हैं कि आपके consumer को क्या चाहिए. हम कहते हैं कि आपके consumer को ये product चाहिए, ऐसे चाहिए, ये qualities होनी चाहिए. What is governance? What is government doing? Looking at the consumers. What is the consumer is always changing, right? For us also, हमारा consumer आज जैसे कहते हैं ना कि आज एक चीज़ खरीदता है, फिर उसको उसके अंदर कुछ और चाहिए. सेम वे गवर्नेंस में होता है कि अगर सर 8 बार जीते हैं, कोई रीज़न ही होगा ना. ही ऑल्सो kept changing his style to keep up with the changing needs of the voter for the consumer. So हमारा सेकेंड एक चीज़ मैं बोलता हूँ स्टार्टअप से जो स्टार्टअप्स अच्छे से करते हैं वो होता है इनोवेशन, राइट? पॉलिसी मेकिंग इन आर स्ट्रैटेजीज. पिवटिंग क्या होता है कि आप नई चीज़ ट्राई करते हो, अगर वो अच्छी नहीं चली तो उसको बंद करते हो, अच्छी चली तो उसको डबल डाउन करते हो, राइट? अगर हम लोग जैसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपनी स्टार्टअप में, तो हम करते हैं कि चल हमने एक ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगर वो नहीं चल रहा तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरे पर जाते हैं. अगर एक बिजनेस स्ट्रैटेजी ट्राई करी कि चल हम इसको ट्राई करते हैं, इस स्ट्रैटेजी को, ये नहीं चली तो नेक्स्ट में जाते हैं. ऐसे ही आई थिंक गवर्नेंस होती है कि आपने एक पॉलिसी एक एरिया के लिए लॉन्च करी, वो अगर अच्छी चली तो आपने नेक्स्ट एरिया में लेके गए, एंड देन यू नो नाउ इफ यू सी देयर लॉट ऑफ पॉलिसीज in the central government and a lot of policies which states are adopting, which are policies which are already successful, right? There is some policy in Madhya Pradesh which was successful, is now being implemented all over India, right? So this is what startups do, and I think it's mutual. We all learn how to work with people, how to serve the nation is what we learn from government. So I think it's a mutual respect and learning from each other. बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी. संवाद की श्रृंखला में अगला प्रश्न आदरणीय सतीश महाना सर से है.
आप सभी ने देखा कि एक लंबा राजनीतिक सफ़र 91 से उनका आज तक बदस्तूर जारी है। तो इस दौर में मैं उनसे जानना चाहता हूं और हमारे सारे युवा जानना चाहते हैं कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक भाषण चुना जिसने उनको प्रभावित किया और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महाना सर। धन्यवाद। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि 1991 से लेकर आज तक सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में काम करने का अवसर मिला। अभी मैंने अपने उद्बोधन में इस बात को कहा था कि हमारे को एक जनता के साथ कनेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं स्पीकर बनने के बाद मैंने अपनी असेंबली को इतना बड़ा ग्रैंड्योर दिया कि नाउ आई थिंक दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट असेंबलीज इन द कंट्री नाउ। तो सम पीपल आस्क मी कि यार ये बहुत बढ़िया बिल्डिंग बना रहे हो, लोग बिल्डिंग देखने आते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, बिल्डिंग के बहाने लेजिस्लेशन के बारे में हम उनसे बातचीत कर सकें, दिस इज द मेन थिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जिसको विश्वास के साथ अपना प्रतिनिधि चुनती है उसकी जिम्मेवारी अपने लिए काम करने की नहीं है। ही इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ हिज और हर पर्सनल इंटरेस्ट। He is there to look after the interests of the people, those who have elected you, those who have put you on that chair to be there. तो उस चेयर के ऊपर जहाँ पर आप हैं वहाँ पर बैठने के लिए जो लोग उसके पीछे प्रेरक हैं, जो लोग महत्वपूर्ण हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। तो somebody asked me कि आप थोड़े शॉर्ट में जैसे आपने बोला कि एक लाइन बताओ कि कैसे किया करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि you have to be answerable और आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो लाइबिलिटी वो बनती है, जब जवाबदेही बनती है, वो जनता के बेटे। तो फर्स्ट थिंग कि you must be loyal to the party which has been who has decided to propose you as a candidate and fielded you as a candidate within the people। पहली जिम्मेवारी आपकी पार्टी के प्रति बनती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आपकी जिम्मेवारी आपके वर्कर के प्रति बनती है, जो आपके और जनता के बीच में ब्रिज का काम करता है। और तीसरी जिम्मेवारी, यू हैव टू बी लॉयल टू द पीपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी वेदर दे हैव वोटेड यू और नॉट वोटेड यू। सम पीपल से दैट जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनके प्रति क्या आपकी लॉयल्टी बनती है? तो मैं कहता हूँ जिन्होंने वोट नहीं दिया उसके कारण कुछ लोगों ने वोट दिया है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इट इज नॉट कि दे आर आउट। अगर कोई व्यक्ति नहीं वोट दे रहा तो कहते हैं अरे ये नहीं दे रहा तो मैं जरूर दूंगा। तो दे आर ऑल्सो एक पॉजिटिव पीपल टू बी देयर बिहाइंड द सीन, टू बी देयर वेयर यू आर। तो इसीलिए आप जीतने के बाद आपकी जो जिम्मेवारी है वो अक्रॉस पार्टी लाइन पूरी क्षेत्र की जनता के लिए है। एक बात मैं इस बात को कह के वो करूँगा कि किसी ने कहा कि एक ऑपोजिशन के मेरे मित्र ने बोला कि ये बीजेपी के एमएलए हैं। तो मैंने कहा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम्हारा कौन है? एमएलए तो मैं तुम्हारा भी हूँ। अनफॉर्चुनेटली जिस कैंडिडेट को तुमने सपोर्ट किया होगा ही मस्ट हैव लॉस्ट, वो हार गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारा एमएलए। एमएलए तो आज मैं हूँ, पर यदि एमएलए मैं हूँ आज तो मेरी जिम्मेवारी आपके प्रति भी उतनी है, जिन्होंने मुझे वोट दिया तो उनके प्रति भी उतनी है। तो यू हैव टू बी लॉयल टू द पीपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी वेदर दे हैव और नॉट वोटेड टू यू। तो जिस समय आप ये सोचकर काम करेंगे तब फिर आप जनता की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकेंगे। अभी भाई अमन भाई ने मुझसे पूछा था कि मेरे से उन्होंने पूछा था कि भाई आप कैसे इतनी बार जीतते हैं? मैंने कहा यस, आपकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। तो मैंने कहा इनकम्बेंसी होती है लेकिन एंटी नहीं होती, पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव इसलिए होती है कि मैं सोचता हूँ कि जैसी जितनी बार मुझे पिछली बार वोट मिले, द पीपल दोज आर वोटेड यू द प्रीवियस टाइम, some of them may not like your working or they must not be satisfied what you have done for them, those individuals. So you have to join some other people also to come into that kitty. तो जिस समय आप उन लोगों को भी जोड़कर अपने साथ लाने का काम करते हो तब फिर आप आगे बढ़ते हो, और उसके कारण आपकी जिम्मेवारी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बनती है। जो सबसे बड़ा कारण है, आज मैं इस कुर्सी के ऊपर 8 बार लगातार बैठा हूँ, वो मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे शहर की जनता, मेरा वर्कर और मेरी पार्टी। जी, great. Thank you very much for that insight. And
he talked about the collaboration, he talked about supporting each other, you talked about understanding each other. That takes me to my second question, once again to Amanji. Sir, in the context of collaboration, what do you think? How can business leaders collaborate with policymakers like him to create an ecosystem that fosters both economic growth as well as socially responsible growth? That's a good question. Again, I'll tell you a few examples from my life. As I said कि पहले ना मुझे बहुत डर लगता था bureaucrat से, right? And डर लगता था politician से, right? I used to feel कि ये unapproachable होते हैं, right? और हम अपना काम करते हैं, ये इनका काम है, ये अलग काम है, right? जब हम 3 साल पहले, we were not even there in the Shark Tank. Government started talking to us कि आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है. We got calls from the secretary. We met the ministers. पहले कभी नहीं होता था कि the startups were also given a chair in policy making and decision making. आपको एक simple example देता हूँ. जब मेरे को मोदी जी ने लास्ट ईयर मेरे को पेरिस लेके गए फ्रांस अपने साथ डेलीगेशन में, there was a lot of people who had come there, ठीक है. The businesses were, एक बंदे ने बोला कि मेरी ना 60 साल पुरानी कंपनी है. दूसरा बिजनेसमैन आया, वो कहता कि मेरी 6 फैक्ट्रियाँ हैं फ्रांस में. एक आया इंडिगो वाले, वो कहते कि हमने आपके 300 प्लेन खरीदे हैं. और एक तरफ मैं बैठा हुआ था जिसकी कंपनी खाली 6 साल पुरानी थी. और मैंने बोला कि दिस इज़ द न्यू इंडिया, राइट, वेयर पीपल फ्रॉम लाइक अस हु वर लाइक one of the students few years back are also given chance to represent India. That is what is happening with the startup world. There are a lot of dialogues which happen with the startup ministry. They keep calling us कि आप बताओ next क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या एक startup policy forum बन रहे हैं. We feel that we are encouraged, and there are a lot of startups looking at us because we've done decently well. हमें ये लोग जब they give us that recognition, there are a lot of young startups who feel encouraged. Yeah, we should also do something like that. Why can't we do it? So I think it's a good time where the government is working very closely with startups to develop. And as Modi ji rightly said, 2047 is what his vision is, to make India Viksit Bharat, right? A developed nation. And I think startups will play a very important role there. And as they say, we are the 3rd largest startup ecosystem in the world. I think time is not far away when we'll be the number 1 startup ecosystem in the world. बिल्कुल ठीक कहा अमन जी आपने कि देश में एक नया आर्थिक इकोसिस्टम बन रहा है जहां स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और युवा शक्ति कई प्रकार के नए स्टार्टअप के साथ अपने आप को जोड़ रही है. मैं अगला प्रश्न आदरणीय सीपी सर से करना चाहता हूं कि आपने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अनेक नीतियों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिकाएं निभाई, मगर क्या आपके मन में कोई कसक है कि एक राष्ट्रीय नीति जो आप बदल सकते या नहीं बना सकते, तो वो कौन सी होती? 75 साल के अमृत काल के मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पॉलिसी बनाने में पॉलिटिशियन का रोल कम है. वी हैव लेफ्ट दैट स्पेस टू द ब्यूरोक्रेट्स. जब तक हम पॉलिसी बनाने में अपना एक प्रोएक्टिव रोल नहीं बनाएंगे, तब तक हम बहुत बड़े पैमाने पर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी को नहीं बढ़ा पाएंगे. यस, अभी कुछ स्टार्ट हुआ है, स्टार्टअप इसके एग्जाम्पल हैं, बट दे आर फ्यू एग्जाम्पल्स. पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसी बनाने में जनप्रतिनिधि का जितनी भूमिका होनी चाहिए उतनी भूमिका नहीं है. कारण सिंपल है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 3 पिलर हैं: एग्जीक्यूटिव, असेंबली, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी. मेरे साथ महाना साहब बैठे हुए हैं. इलेक्शन होता है, एमएलए होते हैं, 4000 से ज़्यादा एमएलए हैं, 500 से ज़्यादा एमपी हैं. कितने दिन तक असेंबली चलती है? पॉलिसी बनाने का काम एग्जीक्यूटिव करती है. वो पॉलिसी ठीक बन रही है नहीं बन रही है, उसमें कमी है. एक स्टार्टअप को तो भूल के आप डिस्कस कर सकते हो, पर पब्लिक पॉलिसी की स्क्रूटनी करने का काम असेंबली में होता है. जब असेंबली चलती ही नहीं है तो दी क्वालिटी ऑफ पॉलिसी बनाने का काम आप नहीं कर पाते. मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ. कोरोना जब स्टार्ट हुआ
तब सरकार ने फैसला किया सारी स्कूलें बंद हो जाएगी। सो फॉर 2 इयर्स एजुकेशन किस तरह से हो रही थी? मोबाइल से हो रही थी। कल्पना कीजिए उन बच्चों की जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, उन बच्चों की एजुकेशन कैसे हुई? अब वो 2 साल में बच्चे दोनों एक ही क्लास में आ गए, तो एजुकेशन जो डिप्राइवेशन है 2 साल का, वो लंबे समय तक चलेगा। हम एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, इन किसी भी असेंबली में, मुझे पता नहीं माना साहब बताएंगे मुझे, या किसी भी पार्लियामेंट में इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव करना चाहिए? वी नेवर डिस्कस इट। जब हम नहीं डिस्कस नहीं करें तो पॉलिसी बनाने में जब तक हमारी भूमिका नहीं आएगी तब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम आएगी। नंबर 1। नंबर 2, रोल कॉन्फ्लिक्ट है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का रोल कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक ये इम्बेलेंस बिगड़ेगा मान लो, तो इसके फार रीचिंग इफेक्ट होंगे। हु इंटरप्रेट्स द लॉ? कानून बनाने का काम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के कौन बनाएगा, फॉरेन पॉलिसी का कौन बनाएगा, दैट डोमेन लाइज विद द पार्लियामेंट। देयर आर स्टेट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका काम है लेजिस्लेटर बनाएंगे। आफ्टर 73 and 74 amendment, we have empowered local self-government and panchayat, and we have not given them a power. एक गवर्नमेंट चलाने के लिए चीफ सेक्रेटरी होगा, एक सेक्रेटरी होगा, पंचायत चलाने के लिए कौन होगा? हमने कभी कल्पना ही नहीं की। जबकि इस देश में ज़्यादा लोगों की समस्या लोकल लेवल पर, रेवेन्यू की पटवारी के साथ संबंध है, पुलिस के कांस्टेबल के साथ संबंध है, छोटे लेवल पे स्कूल की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए आपने कोई पॉलिसी बनाने का काम नहीं किया। स्टिल वी हैव ए लीगेसी कि कलेक्टर का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो हमने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा उसमें पे। इस देश में आज़ादी के बाद अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी है। वी डोंट नो कि अर्बन पॉपुलेशन के लिए जो इशू हैं, सॉलिड वेस्ट को कैसे खत्म करेंगे, नाली की व्यवस्था कैसे करेंगे, मास ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, हमने मैन पावर को ट्रेन ही नहीं किया। सो यू रिक्वायर्ड ए पॉलिसी वेयर यू रिक्वायर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नेंस मॉडल्स। ये चीज़ें तब तक नहीं हो पाएगी जब तक इलेक्टेड आदमी को राइड करने वाला एजुकेटेड आदमी नहीं होगा। जब मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये जो नई पीढ़ी के लोग जो छात्र संसद में भाग ले रहे हैं, ये जितने वेल इन्फॉर्म होंगे, आप जो मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ जिसको समझने की जरूरत है, आफ्टर एआई इतना बड़ा डिस्रप्शन हो रहा है दुनिया में, एजुकेशन में होगा, हेल्थ में होगा, बिजनेस में होगा, हमने अभी तक उसको इम्पैक्ट को कहीं डिस्कस ही नहीं किया। उसके लिए हमने कानून नहीं बनाए। कैसे कानून बनाने हैं, किस तरह से मोबाइल पे प्रोनोग्राफी के कारण नौजवान पीढ़ी के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमने असेसमेंट नहीं किया। तो माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ 40 years, आई बिकेम एमएलए 1980। एक छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भाग लेते लेते मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरा अनुभव एज ए स्टेट मिनिस्टर, मेरा एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर, मेरा अनुभव एज ए स्पीकर कहता है कि ये जब तक हम जो हमारा वोटर है उसको हम इतना एजुकेट नहीं करेंगे, उन्हीं में से लेजिस्लेटर बन के आएंगे, उसी में से मंत्री बनेंगे, तब तक वो गैप नहीं होगी। तब तक हम पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रोल कम होगा। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन इज वन थिंग, बट पार्टिसिपेशन पावर इज इंपॉर्टेंट। जब तक हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पावर नहीं देंगे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ज़्यादा असेंबली और पार्लियामेंट की मीटिंगें बुलाकर क्वालिटी ऑफ पॉलिसी को इम्प्रूव करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम पब्लिक वेलफेयर के जितने काम करने चाहते हैं उसमें तकलीफ आएगी। हाँ, बस सही है, हमने बहुत प्रोग्रेस की है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैं समझता हूँ कि इस देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा। डेमोक्रेसी देश में इवॉल्व हो रही है। 75 ईयर्स में हमने बहुत अचीव किया है, बट द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटर ज़्यादा अच्छे इलेक्ट होकर आएंगे। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं उनको मौका मिलेगा तो वो और तेज गति से, जैसा गुप्ता जी कह रहे हैं, उस तरह की समस्याओं को बनाने में ज़्यादा अच्छी भूमिका निभा पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जोशी जी। अब एक सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द हार्ट्स ऑफ ऑल द यंग माइंड्स दोज आर सिटिंग हियर। सर, आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर that MIT World Peace University runs a program called as Co-Creation Program. So उसमें क्या होता है, बच्चे अलग अलग शिक्षा शाखाओं से, मतलब इंजीनियरिंग, कोई फार्मेसी का बच्चा, कोई बिजनेस का बच्चा, वो सब एक साथ आते हैं एंड दे ट्राई टू वर्क ऑन सम सोशल इश्यूज टू सॉल्व दो सोशल प्रॉब्लम्स, को क्रिएट द सोल्यूशन। और उसमें से कई स्टार्टअप्स ऐसे आगे आ रहे हैं कि जो बिजनेस के तौर पे ये सॉल्यूशंस आगे लेके जाना चाहते हैं। So I think there is only one person on this stage who can ask this question to Shri Aman Gupta ji. Sir, what do you think? What are those ingredients to make a brand successful? Because if students are taking up such challenges and creating new brands and creating new enterprises, what is your message to them? What are the ingredients to make it successful?
Again, thank you for the question. And I think, for me, ब्रांड बनाना ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको हर चीज़ में ब्रांड बना सकते हो. और मेरे हिसाब से इट्स वेरी सिंपल. मैंने ना लाइफ में, अपनी लाइफ में मार्केटिंग और ब्रांडिंग पढ़ी नहीं है. I have not studied, right? But still today people say that, Boat is one of the most successful brands in the country, right? The reason is very simple. एक ना बहुत पुरानी एक लाइन है. अगर आप किसी भी शॉप में जाओगे ना, तो आप लिखा होता है वहाँ पे, नीचे लिखा होता है ग्राहक भगवान है. सुना आपने, ग्राहक भगवान है लिखा होता है. इट्स वेरी सिंपल. कंज्यूमर इज योर गॉड. योर ब्रांड इज बिल्ड बेस्ड ऑन व्हाट द कंज्यूमर वांट्स. आई टेल यू अ स्मॉल एग्जांपल. आपका जब कंज्यूमर इंडिया में था ना, जब हम लॉन्च कर रहे थे, so there were a lot of brands which were selling similar products. I was not the first headphone brand in the country. Headphone हमसे पहले there were a lot of Japanese, Chinese, German and even Indian brands which were selling. In 6 years, why did we become one of the most successful brands? Is because we kept our consumer at the forefront. Always. Second, brand is very, it's a definition, right? There are only 4 P's in brand building. एक होता है, first P is product. आपका product अच्छा होना चाहिए. Second P is right place where you sell it. Third is right price. And fourth is right promotion. Nothing else matters. It's very simple. It's very simple. सही product लाओ, सही दाम पे बेचो, अच्छे से बेचो, जहाँ consumer है वहाँ जाके बेचो और माल बिकता है. So it's very important that, आप कभी भी अपना ना प्रोडक्ट प्राइस से मत बेचो. कभी भी. आप देखो, सबसे सस्ती गाड़ी इंडिया में जो आई थी ना, वो थी टाटा नैनो. यू रिमेंबर? वेयर इज टाटा नैनो टुडे? बंद हो गई. क्यों? क्योंकि उसने बेचा प्राइस से. उसने बोला कि ये सबसे सस्ती गाड़ी है. इंडिया में कोई सस्ता नहीं खरीदता. कोई सस्ता नहीं खरीदता. आप किसी गांव में चले जाओ, वो पूछते हैं कि आपको क्या खरीदना है, तो बोलता है मुझे वो खरीदना है जो टाउन में खरीदा जा रहा है. टाउन वाला वो बोलता है जो सिटी में खरीदा जा रहा है. सिटी वाला वो देखता है जो मेट्रो में खरीदना जा रहा है. तो एवरीबडी इंडिया में, हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी एस्पिरेशनल है. उसे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको शो ऑफ करने में मज़ा आए, जो उसको उसकी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में मज़ा आए, जो उसको लगे कि भाई मैंने ये खरीदा है, मैं दूसरों को बताऊंगा कि देख मेरा ये नया ब्रांड है. तो ब्रांडिंग इज़ वेरी क्रिटिकल. यू हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट. एनीथिंग यू डू इन योर लाइफ, build a brand which is aspirational yet affordable. That is what India is. And today I am proud to say, that we are now world's second largest audio brand. World's second largest. जोरदार तालियों से इस युवा उद्यमी का हौसला बढ़ाइए, जिसने ब्रांडिंग के कारण आज बोट को बोस के ऊपर ले गए हैं साउंड की टेक्नोलॉजी में. ये आप में से ही कोई आया है, कोई अलग से नहीं आया है, कोई एलियन बाहर की दुनिया से नहीं आया है. अपनी इच्छा शक्ति से इन्होंने अपने ब्रांडिंग के बल पर, अपने अन्वेषण के बल पर ये मुकाम पाया है. बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी. मेरा अगला प्रश्न आदरणीय सतीश महाना सर से है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा नवाचार की एक जननी जैसी हो गई है. अनेक वहाँ पे प्रयोग हुए हैं आपके नेतृत्व में. मेरा ये जानना है कि आज का युवा ये जानना चाहता है कि क्या स्कूल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप विधानसभाओं में प्रारंभ किए जाने चाहिए, ताकि जिन युवाओं की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो आप जैसे अनुभवी व्यक्तियों, नेताओं के माध्यम से अपना राजनीतिक करियर प्रारंभ कर सकें. धन्यवाद सकल जी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी बिकॉज UP Assembly, as I told you, the perception of UP was a decade back now. So that has changed. हमने अपनी assembly, UP Assembly is paperless assembly. We have everything online. The questions which are being asked by the members and other notices in different rules, that are also online. The answer of those questions is directly sent to the members online. And it is not only that, because now the proceedings of the House, they are being relayed live on YouTube and other TV channels also. So, अभी जो MLAs हैं, they are more cautious कि उनकी performance कैसी होनी चाहिए.
आज से पहले बहुत सारे हमारे जो यंग एमएलए हमारे को कहते हैं कि सर जब आप थे तो आप तो वेल में आ जाते थे, आप ये करते थे। तो मैंने कहा तब एक ही मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने का एक ही रास्ता होता था कि हमारा नाम अखबार में छपे कि इन्होंने विरोध किया था ऑपोजिशन में जब हम थे। तो मैंने कहा अब पीपल डोंट वांट दैट आप विरोध करो, पीपल वांट टू सी कि व्हाट आर यू परफॉर्मिंग फॉर आवर पर्पसेस, हमारे लिए आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो लोगों में जो अवेयरनेस आई है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और उस अवेयरनेस को जो एड्रेस करने के लिए उस अवेयरनेस के प्रति जागरूक होने का काम अब एमएलएस करते हैं। पहले एमएलएस बोलते नहीं थे, अब एमएलएस का मेरे साथ बहुत रिक्वेस्ट आती है कि सर हमें थोड़ा सा मौका दे दे, और जो कुछ भी वो बोलते हैं वो दे स्पीक सेंस नाउ, and whatever they speak they just put it into YouTube and some other social platforms that their people must see and look into। यार वो कहता है यार हमने ये बोला था, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमारे को, तो अब जो अकाउंटेबिलिटी है वो डायरेक्ट हो गई है, तो उसके कारण अवेयरनेस आई है, उसके कारण ये जो है ना पहले परफॉर्मर्स दे वांट टू परफॉर्म, अब इट इज बोथ वेज कि जनता अब चाहती है कि उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि क्या कर रहा है, दे वांट टू देखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को मौका नहीं मिलता क्योंकि टाइम उतना है, कम से कम वो इतना तो आके मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे को आपने मौका नहीं दिया, कैमरे वालों को ये तो दिखाइए कि हम बैठे हुए हैं वहाँ, नहीं तो कैमरे पहले कोई बैठा था कि नहीं बैठा था, हु केयर्ड, हु वाज कंसर्न्ड अबाउट इट। अब लोगों को लगता है कि नहीं हमारा आदमी हमारे लिए वहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। मैं आदरणीय जोशी जी को जैसे मैंने कहा कि मैं इनको एक आदर्श मानता हूँ, ये निश्चित रूप से जो बात इन्होंने कही है वो 100% सही है, उसमें कोई बिंदी में नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अल्टीमेटली we the elected representatives and the legislature has to understand, और जो बात मैंने कही थी कि public has to understand this, एक मैंने कहा था ना कि आपको नेतृत्व के ऊपर विश्वास, वो विश्वास कम हो गया कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के द्वारा अपने आप को पीछे खींचा गया कि we handed over that authority to the executive which was to be done by legislators now, that was handed over। आई डोंट मीन टू से, मैं अपने एमएलएस को भी बोलते हैं कि आप डीएम का काम नहीं कर पाओगे, आप एसपी का काम नहीं करोगे, आप लेखपाल का काम भी नहीं करोगे, उन्होंने अपना काम करना, आपने अपना काम करना। ऑन द अदर साइड आई टेल द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो दैट आप जो कुछ कर रहे हो उसकी जिम्मेवारी लाइज ऑन द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, और कोई वहाँ पर आपकी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मीडिया वाले दिखाएंगे ये सड़क टूटी है, एमएलए जिम्मेवार, लाइट नहीं आ रही है, एमएलए जिम्मेवार, सिंचाई नहीं हो रही है, एमएलए जिम्मेवार, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, एमएलए जिम्मेवार, शिक्षा ठीक नहीं है। जिम्मेवारी हमारी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। नेगेटिव अगर कोई चीज होता है तो वी आर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और कुछ पॉजिटिव हो जाती है तो ऑब्वियसली इट गोज टू द एग्जीक्यूटिव साइड, वो बहुत अच्छे लोग हैं। तो इसके बीच में बैलेंस बनाने का आज वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, और वो तब पॉसिबल है जब जनता का अपने प्रतिनिधि के ऊपर विश्वास होगा। उस विश्वास को हमने जो कम हुआ था उसको पुनर्स्थापित करने के लिए विश्वास है। मैं आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिकल, ईच एंड एवरी टाइम जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए और सबने देश के लिए काम किया, सबने देश के लिए काम किया। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और हम सबको इस बात के लिए समझना होगा, ऐसा नहीं है कि पिछले 10, 11, 12 साल के अंतर्गत हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक रिस्पेक्ट खो दी थी पॉलिटिशियन ने, लोगों ने कहा था कि यार इनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, उस रिस्पेक्ट को वापस लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। लोग कहते हैं अब जो ये कहते हैं वो करते हैं, जो ये पहले कहते थे वो करते नहीं थे, उसके कारण हम नीचे गए थे, अब जो हम कहते हैं वो करते हैं, और सबको उस ओर चलना पड़ेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी को उस ओर चलना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस पब्लिक के बीच में आई है, और वो उस अवेयरनेस के कारण एक बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता है। और यूपी असेंबली बीइंग द लार्जेस्ट असेंबली इन द वर्ल्ड, अगर मैं कहूँगा वर्ल्ड में असेंबली के नाते देश तो 4 हैं, देयर आर 4 कंट्रीज दोज हु आर more populated than what Uttar Pradesh is, but I don't think that any of the assemblies within those 4 countries also that will be so big. So I have the privilege and proud privilege to say that UP Assembly is the largest assembly representing people across the world. It is not only the state in the country. So I am proud to be there, and now we are leading in each and every aspect, and we are learning also from friends like Joshi ji and many more friends in different states from different political parties also. So we are learning from them also. अच्छी चीज बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ से भी मिलेंगे हम वहाँ से सीखेंगे और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं इतना बात करूँ। Thank you. Thank you very much. And now we come to the important and the last segment of this panel discussion, and which is rapid fire round.
In rapid fire round, you both are also the student leaders, those who have come from different corners of the country. You are also going to participate. So ऐसा होने वाला है सर, मैं आपको ये सवाल जो है हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं, ये मैं आप सभी को एक ही सवाल सभी को पूछने वाला हूँ और उस पर आपको विचार नहीं करना है, आपको एक क्षण में टॉप ऑफ योर माइंड जो आता है वो बोल देना है. हाँ बिल्कुल. The वो first one, गुंजाइश रहेगी सर दूसरे वाले if को. I ask the first question to this one, then you will get some time. But yeah, that's the advantage. Okay, so the first question to you: one word you think would describe the leadership in 21st century. One word to describe leadership in 21st century. Leadership is not about One giving word, orders. sir. One word. Together. Leadership is about together. Togetherness. Okay, Amanji. Growth. Growth. Okay. Accountability. Accountability. उनको mic क्या? Futuristic. Futuristic. Okay. Women representation. Women representation. Okay, that's a good one. Next question. Now, I'll start with you to keep it fair. A historical leader you admire. Indira Gandhi. Okay. तो तालियां आ रही है. ऐतिहासिक व्यक्ति जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, राजनीतिक व्यक्ति. I will take two people, Indira Gandhi and Modi. Okay. अटल बिहारी वाजपेयी. Okay. Sir. Yeah, I agree. Historical leader Atal Bihari Vajpayee ji would be the one. Oh, okay. Yes, I also agree with Atal Bihari Vajpayee ji. Okay, so fine. Now I'll start with you. One book you think every young leader should read. S. Jaishankar ji book just published, Why Bharat Matters. Every youth must read that. Okay. Please. ऐसी कौन सी किताब है जो सभी यूथ लीडर्स ने पढ़नी चाहिए? एक किताब. यार ये गलत क्वेश्चन पूछ लिया, मैं किताबें पढ़ता नहीं जा रहा. मैं स्वामी विवेकानंद. Oh, okay. Discovery of India. भारत के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री. Okay. सर मेरा प्रश्न है कि इतिहास में ऐसा कौन सा अनसंग हीरो है, भारतीय हीरो, जिससे ज्यादा मान्यता मिलनी चाहिए थी मगर मिली नहीं? It can be ancient. I feel it is Draupadi. After independent, Manmohan Singh ji. कर्ण. कर्ण का अपना एक योगदान था. कर्ण. कर्ण वो महाभारत वाला. बिल्कुल बिल्कुल अनसंग हीरो बिल्कुल. Yeah, +1. Yeah, I agree. I think from Ramayan, Bharat ji. तो मतलब अमन जी अपनी ब्रांडिंग नहीं छोड़ेंगे +1 करके यहाँ पे. हमारा अगला एक प्रश्न ये है कि भविष्य में ऐसा कौन सा आविष्कार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ML आ गया, चैट GPT आ गया, डीपसीक आ गया, जो आप देखना चाहेंगे? जो AI के बेसिस पे अभी इंटरेक्शन कम हो गया यूथ का, वो बुद्धिमत्ता का ज़्यादा इंटरेक्शन चाहिए, ताकि जैसे अभी आविष्कार एक शब्द में बताएं, कौन सा आविष्कार आप चाहते हैं जो कि मानवता को समझे, AI बेस्ड ना बना दे पूरा का पूरा, ह्यूमन सेंट्रिक? ह्यूमन सेंट्रिक. मेरा ना इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ. मेरा AI के ऊपर व्यू ये है, जैसे ये कह रहे थे AI के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि AI से कोई फ़र्क पड़ेगा. एक वो पिक्चर आई थी रजनीकांत की थी, रोबोट, देखी थी? तो इवेंचुअली कौन जीता था? चिट्टी, करेक्ट? या वो जो इंसान जीता था. तो मुझे लगता है AI से ना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं. इवेंचुअली ह्यूमंस विल ओनली विन एंड नॉट AI. सो फॉर मी ह्यूमन मैनकाइंड इज स्टिल इवॉल्विंग एंड विल इवॉल्व एंड नॉट AI. सतीश सर. दूसरे को दर्द को अपना समझना. क्या बात है, संवेदनशीलता. सीपी सर. Human values. क्या बात है, बहुत 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 सुंदर. अदिति. स्किल ट्रेनिंग्स. जोरदार तालियों से इन सभी प्रश्नों का, इस संवाद का स्वागत करें. एक अप्रत्यक्ष प्रयास यहाँ पे किया गया था हमने अपने पैनल डिस्कशन के माध्यम से, और चूंकि समय की एक सीमा है और हम जानते हैं कि ये बड़ा ही अलग दिशा में संवाद जा रहा था, मगर आने वाले कार्यक्रम आपको पता है कि हमारे साथ महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी जुड़ना चाहते हैं और लंच का टाइम भी हो रहा है. तो मैं आप सभी लोगों को
धन्यवाद करता हूं और गौतम जी से बोलता हूं कि आगे जो कार्यक्रम की महत्वपूर्ण घोषणा है वो करें। और मैं सभी पैनल सदस्यों का हमारे राहुल कराड सर की ओर से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much everyone. Thank you very much for being part of this panel. Thank you sir. Thank you very much.